Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful, beautiful morning to start with today's current affair. As usual, a quotation so that it can boost your confidence, our confidence together. So education is not about knowing about everything, but about learning how to think, clearly and act wisely after thinking clearly. So when we think about real education, it is not about memorizing facts. It's not about only scoring marks. It is part of this, but not the only part. It is about developing the ability to think, to question, to understand the world around us. So when we learn to think clearly, we make better decisions in life and society. So today's class is like a small step towards that path, toward that journey of thinking, so that we can have deeper understanding. So with this open mindedness and with this open clarity, we'll start our today's class. And before this, I just want to tell you that make sure that you're writing all the keywords that I'm telling you. Very, very important. Now, let's see what our first news is telling to us. So it says wetland as a national public good. Now, first of all, let's understand what are wetlands and why we are, understanding and learning it. Good morning. So this is very important for the prelims and for mains answers too, because we will be covering ecosystem and environmental problems that we are facing today. So for essay and for other mains paper, this is very important. But for prelims, we will be covering lots and lots of things in here. Okay. अब imagine करो there is a place that looks muddy or waterlogged, right? Mountain की बात नहीं हो रही है, forest की बात नहीं हो रही है, river की बात नहीं कर रहे हैं, just land that stays wet. So most people don't find this place beautiful. Some even call it useless, right? But in reality, अगर हम इसकी बात करें, तो these places are known as wetlands, and these are basically nature's most powerful helpers. ठीक है? Wetlands are all over India, right? और इसकी requirement हमें क्यों जरूरी है और basically हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, that we are going to understand. ठीक है? अगर हम इनकी बात करें, तो they seem like very ordinary, right? But they play extraordinary roles in keeping nature healthy and people healthy. ठीक है? अब बात करेंगे कि न्यूज़ किसके बारे में है. जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो there is problem which is coming around, जो कि हमें ये बताती है that how important it is for India to keep wetland safe, right? Now we are going to understand that why these wetlands are disappearing. ठीक है? तो इस पे experts ये बोल रहे हैं कि wetland should be treated as a national public good. ठीक है? सिर्फ एक empty land की तरह हमें इसे treat नहीं करना चाहिए, right? तो ये जो न्यूज़ है हमारी, ये से हम लिंक करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 से, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रामसर कन्वेंशन आल्सो, और इंडिया की एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज क्या-क्या है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पेपर के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कवर जीएस पेपर 1, एज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर about the ecosystem, right? About wetland, about the society and livelihood tradition practices. For GS paper 2, it is important because we are going to understand governance and environmental institutions, right? GS paper 3 के लिए it is important because we are going to understand environment and ecology with climate change, disaster management and floods. So all these things we are going to discuss over here. ठीक है? कि ecosystem का क्या रोल होता है sustainable development में, right? So this is telling us about development versus ecosystem, environment. ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ में. पहले समझेंगे कि wetlands है क्या. So wetlands are areas where land and water meet. ठीक है? They are neither fully land, ना ही वो fully water होंगे. ठीक है? Something like this. जहाँ पर हमारी land, right, and water are meeting. ठीक है? तो मतलब यहाँ के भी हमारे पास we'll have basically animals over here also and from here also. ठीक है? तो यहाँ की जो हमारी land meet करती है, that is known as wetland. So wetland को तुम ऐसे सोच के चलो कि it is like half water and half land zones. अगर इन्वायरमेंटल लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो इट इज लाइक मीटिंग जोन. ठीक है? और इस मीटिंग जोन को हम लोग बोलते हैं इकोटोन. ठीक है? अब इकोटोन इज लाइक ट्रांजिशन जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम. ठीक है? वेटलैंड इज लाइक नेचर्स मल्टीपर्पस मशीन. जैसे अगर हम एक मशीन की बात करते हैं, तो वो कैसे इतने सारे काम करती है, मल्टी वर्क्स, राइट? एक मिक्स ग्राइंडर की बात करें, वो एक जूस एक्सट्रैक्ट करती है, ग्राइंड और क्लीनिंग दैट डू, राइट? तो वेटलैंड्स आल्सो डू मेनी जॉब्स एट द सेम टाइम. वो वाटर को भी स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि टैंक हो, राइट? और उसके साथ साथ में डर्टी वाटर को क्लीन भी करते हैं लाइक अ फिल्टर, राइट? एंड दे आल्सो कंट्रोल फ्लड्स लाइक अ सेफ्टी वैल्यू. एंड नॉट ओनली दैट, दे गिव होम टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे कि वो शेल्टर दे रहा हो, राइट? तो इट्स लाइक वन प्लेस बट विद मेनी फंक्शन. सो दिस इज व्हाई वेटलैंड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको कंजर्व करने की यहाँ पर बात हो रही है, राइट? इसीलिए हम वेटलैंड को बोलते हैं नेचर्स मल्टीपर्पस मशीन, क्योंकि एक चीज से बहुत सारी चीजें हो रही है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद द वेटलैंड, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है.
तो पहली चीज, इट कंट्रोल फ्लड्स, ठीक है, ऐसे काम करता है जैसे नेचर का कोई स्पॉन्ज हो, ठीक है। वेटलैंड को बेसिकली अब्सॉर्ब करता है एक्स्ट्रा रेन वाटर ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल। जैसे अगर कोई सिटी में, राइट, हैज लाइक वेटलैंड्स एंड लाइक फ्लड्स बेसिकली आर गोइंग टू बी लेस सीवियर देयर, राइट। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां पे फ्लड इतना देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस वेटलैंड, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखती है, राइट। उसके बाद में वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। सो इट इज लाइक नेचर वाटर फिल्टर। सो वेटलैंड्स कैन लाइक क्लीन डर्टी वाटर नेचुरली। वो जो है डस्ट निकालती हैं, पोल्यूटेंट्स निकालती हैं, जितना भी एक्सेस न्यूट्रिएंट होगा वो निकालती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक वाटर पासिंग थ्रू अ वेटलैंड बिकम्स क्लीनर बिफोर एंटरिंग टू रिवर या फिर ग्राउंड वाटर में, ठीक है। उसके बाद में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इट एक्ट्स लाइक अ वाटर बैंक। तो वेटलैंड स्लोली एंड स्लोली रिलीजेस वाटर इनटू ग्राउंड। ये बेसिकली हेल्प करता है वेल्स में भी, हैंड पंप्स में भी, ड्रिंकिंग वाटर एंड फार्मिंग आल्सो, एंड इट डिस्ट्रॉयज ऑल द पोल्यूटेंट्स आल्सो। अगर वेटलैंड्स खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो ग्राउंड लेवल का वाटर है, लेवल है, दैट विल आल्सो कम डाउन, दैट विल आल्सो फॉल, ठीक है। इसीलिए वेटलैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ में और क्या क्या चीजें हैं, क्लाइमेट प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन करा कि जो हमारा कार्बन है, राइट, वेटलैंड उसे स्टोर करके रखते हैं, हेल्प करते हैं हमारी क्लाइमेट चेंजेस से, राइट। हमारा जो साइक्लोन है वो रिड्यूस होता है, हमारे कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वेटलैंड जो है वो ऐसे काम करता है जैसे एक क्लाइमेट शॉक एब्जॉर्बर्स हो, राइट। उसके साथ साथ में लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मिलियंस डिपेंड्स ऑन दीज वेटलैंड्स। हमारी फिशिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, टूरिज्म इज देयर, हैंडीक्राफ्ट्स इज देयर, राइट। सो वेटलैंड्स बेसिकली सपोर्ट पीपल्स डेली लाइफ, राइट। सिर्फ नेचर की बात नहीं है, दिस इज टॉकिंग अबाउट लाइवलीहुड आल्सो, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि हमारे लिए वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। अब अच्छा इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई है, तो प्रॉब्लम क्या है? सो प्रॉब्लम इज कि अभी के टाइम पे अगर सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स लॉस्ट ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारे पास वेटलैंड्स का डिसअपीयरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो इंडिया की सिचुएशन ये है that around 40% of wetlands lost in recent decades. कितना? 40%. And many remaining wetlands are polluted or they are enriched. ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो अर्बन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, राइट। उसके बाद हम लोग जो डंप, राइट, वी आर वेस्ट लाइक डंपिंग द वेस्ट, ठीक है, दूसरा रीजन वो है। उसके साथ साथ में हमारा जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन है, दैट इज आल्सो द अनदर रीजन। क्लाइमेट चेंज इज अनदर रीजन। So बहुत सारे wetlands they are like wrongly seen as an empty land, but in reality they are considered as the important resource for us, right? अब जब हमने बोला था कि हम लोग कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे से, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ वी सेलिब्रेटेड एंड व्हाई इट वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी हर साल को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दिस डे रिमाइंड्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। मतलब जैसे हमारे पास मार्चेस हो गई, राइट, फ्लड प्लेन्स हो गए, अबाउट दिस डे। तो इस दिन पे, राइट, ऑन दिस डे इन 1971 इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल्ड द रामसर कन्वेंशन वाज साइन, ठीक है। तो इनका एम था ये प्रोटेक्ट करना कि जितने भी हमारे पास वेटलैंड्स होंगे, राइट, हम उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, राइट, हम प्रिजर्व करके रखेंगे उनको, बेसिकली बचाएंगे, राइट। तो इट्स का एम ये था कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे सारे वेटलैंड को अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। सो अगर हम इस 2026 की थीम की बात करें तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज वाज दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट कल्चरल हेरिटेज, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि लोकल पीपल हैव लाइक प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते थे, मॉडर्न मशीन्स यूज नहीं होते थे, राइट। सो दीज प्रैक्टिसेस रिस्पेक्ट्स नेचर, दे रिस्पेक्ट्स कल्चर, दिस रिस्पेक्ट लाइवलीहुड, राइट। तो इसकी वजह से वेटलैंड स्टेड हेल्दी और हमारा वेटलैंड जो है यूजफुल रहा इसकी वजह से, राइट। सो ये हमारा थीम बताता है कि जो हमारा ओल्ड विजडम है, राइट, दिस कैन क्रिएट एंड बेसिकली केयर अबाउट आवर नेचर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ रहा, दिस टेल्स अस अबाउट द सस्टेनेबल
I'm sorry for the glitch, students. So as we were discussing about the convention, right? So हम लोग समझ रहे थे कि इसे रामसर कन्वेंशन क्यों बोला जाता है, right? So जैसे कि मैंने बताया, रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था इसलिए ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके वेटलैंड्स को, राइट? नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, राइट? अब ये साइन हुआ था 1971 में. अब इसको रामसर क्यों बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड रामसर बिकॉज इट वाज साइंड इन अ प्लेस नोन एज रामसर, राइट? इसीलिए इसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन. ठीक है, अब क्यों साइन हुआ वो भी हमें समझ में आ चुका है. अब प्रॉब्लम क्या थी वो भी समझ में आ चुकी है. तो बेसिकली इंडिया ज्वाइन दिस कन्वेंशन इन 1982. इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 1982, right? And they basically showed that their commitment is towards the saving the wetland protections, right? अब रामसर साइट की अगर हम बात करें तो रामसर साइट्स आर लाइक द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट? सो दीज वेटलैंड्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल. ठीक है, नेचर के लिए भी, एंड एज आई सेड कि नॉट ओनली फॉर नेचर, सिर्फ उसके लिए नहीं, लोगों के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू वेटलैंड. ठीक है, अब रामसर साइट जो है वो प्रोटेक्शन में क्यों है? So they are protected because they help in biodiversity also. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, wetlands are like home to birds. ठीक है, अलग अलग फिशेस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए. उसके बाद में वाटर सिक्योरिटी, राइट? वो वाटर स्टोर करके रखते हैं, रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को. क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए भी, क्योंकि वो फ्लड कंट्रोल करते हैं, हीट को रिड्यूस करते हैं, कार्बन स्टोर करके रखते हैं. सो दिस इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए रामसर साइट भी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात होती है. ठीक है, अब इंडिया और रामसर साइट की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज लाइक 98 रामसर साइट्स. कितनी? 98. ठीक है, जिसमें से हमारे पास में चिलिका लेक इज देयर जो कि ओडिशा में है, राइट? जम्मू एंड कश्मीर में भी है, मणिपुर में भी है. लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेटलैंड्स दैट वी हैव. ठीक है, नए नए एडिशंस भी कुछ कुछ हुए हैं, जैसे कि हमारे पास पटना बर्ड सेंचुरीज है जो कि उत्तर प्रदेश में है, राइट? गुजरात में भी देयर इज न्यू वेटलैंड दैट हैज बीन देयर. तो नए नए वेटलैंड्स की भी बेसिकली एडिशंस हुए हैं यहाँ पर, राइट? अब यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे क्या क्या लॉज बनाए गए हैं विच आर लाइक टॉकिंग अबाउट सेविंग दीज वेटलैंड्स. ठीक है, तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वेटलैंड्स दैट इज कंजर्वेटिव एंड मैनेजमेंट रूल्स जो कि आए थे हमारे पास 2017 में, दे टॉक्ड अबाउट सेविंग दीज वेटलैंड्स. ठीक है, रीजंस मैंने बता दिया कि क्यों सेव करने की बात हो रही है, राइट? सो वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं वेटलैंड्स को. ठीक है, जितनी भी वहां पर हार्मफुल एक्टिविटीज होंगी उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट? उन्हें बेसिकली स्टेट को पावर देते हैं टू सेव दी वेटलैंड्स. अथॉरिटीज बनाई जाती है उनके लिए. बट प्रॉब्लम इज दैट देयर इज लाइक वीक एनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, डेवलपमेंट का प्रेशर इतना ज्यादा हाई है कि हम लोग हमेशा नेचर को भूल जाते हैं, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग कॉन्टिन्यूअसली, और इसीलिए हम इस न्यूज को पढ़ भी रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म मेंशन की थी मैंने, दैट वाज नेशनल पब्लिक गुड. अब नेशनल पब्लिक गुड का मतलब ये है दैट अ पब्लिक गुड इज समथिंग दैट एवरीवन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम. किसी कोई भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता है इससे, है ना? बेसिकली उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल क्लीन एयर, नेशनल सिक्योरिटी, रोड्स. सो वेटलैंड गिव्स फ्लड कंट्रोल. ठीक है, क्लीन वाटर भी देते हैं वो हमें, क्लाइमेट सेफ्टी भी देते हैं हर किसी को. सो दे शुड बी ट्रीटेड एज नेशनल पब्लिक गुड, और कोई प्राइवेट लैंड नहीं समझनी चाहिए, बिकॉज दे आर प्रिजर्विंग समथिंग, दे आर गिविंग समथिंग, राइट? सो दे आर लाइक द रिसोर्स टू अस, जिसे हमें प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात की गई है. दिस इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज नेशनल पब्लिक गुड. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. अब इसके साथ साथ में यहाँ पे और न्यूज क्या बता रही है कि इस न्यूज में ये भी आर्गुमेंट दी गई है कि रामसर साइट जो है सिर्फ वही काफी नहीं होगी, राइट? हमारे पास वेटलैंड की एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, एज इट वाज सीन कि स्टेट्स को अथॉरिटीज दे दी गई है, राइट? दे आर गिवन पावर टू सेव वेटलैंड्स. बट जब हम इन्फोर्समेंट की बात आते हैं, व्हेन इट कम्स टू इन्फोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर लैकिंग देयर, है ना? गैप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. उसके बाद कंजर्वेटर और डेवलपमेंट को भी वी हैव टू टेक दीज टू थिंग्स टुगेदर, बैलेंस करके चलना पड़ेगा इन चीज को, राइट? लोकल कम्युनिटीज को भी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा. दे आल्सो हैव टू प्रोटेक्ट दिस वेटलैंड, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि वो कैसे लाइवलीहुड में भी नॉर्मल पीपल आल्सो दे प्लेस इंपॉर्टेंट एंड ह्यूज रोल, राइट? तो साइंस और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इसमें साथ देना पड़ेगा, एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू सेव वेटलैंड्स. आई होप दिस न्यूज इज क्लियर टू यू. समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फ्लड कंट्रोल करते हैं, राइट? And not only flood control, they are important because they are habitat for biodiversity also, right? जैसे हमारे पास fishes हैं वहाँ पर, right? And not only fishes, we have like different species also that wetland is basically preserving. उसके साथ में water purification करता है, ground water जब हमारे पास आता है तो फिल्टर होके हमारे पास water आता है because of this wetland, right?
उसके साथ साथ में क्लाइमेट प्रोटेक्शन में इट हेल्प्स, ये स्टोर करता है कार्बन को और रेगुलेट करता है हमारे क्लाइमेट को, राइट। उसके बाद में क्लाइमेट प्रोटेक्शन में भी इट हेल्प्स एज इट इज लाइक स्टोरिंग कार्बन, रेगुलेट क्लाइमेट। लाइवलीहुड में भी इट इज हेल्पिंग अस क्योंकि हमें पानी प्रोवाइड करता है, सो इट इज गिविंग सम रिसोर्स टू अस, सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड शुड बी कंज्यूम्ड। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ विद दिस वी हैव वन न्यूज, one question. Please write the answer. With reference to wetland, consider the following statement. The Ramsar Convention on Wetland is the only global treaty that focuses especially on a single ecosystem. India is signatory to the Ramsar Convention. The Motorx record is registered for wetland science where changes in ecological character have occurred. Can I have an answer on the portal also, students? क्या हुआ इसका आंसर? क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने बताया, रामसर कनेक्शन ऑन वेटलैंड इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिकली ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम। और न्यूज में भी यही बात की गई है दैट ओनली रामसर इज नॉट इनफ, राइट, वी हैव टू वर्क मोर टुवर्ड्स अदर साइड्स आल्सो, और उसी बेसिस पे हमें आगे काम करना पड़ेगा, तभी हमारी वेटलैंड जो है सेव हो पाएंगी, राइट। सो दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन, दिस इज ट्रू। उन्होंने बेसिकली साइन कब करी थी, कब ज्वाइन किया था उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, so in 1982 they joined, so option number 2 is also correct. Option number 3 is also correct, as Motrix register, you know, of Ramsar wetland sites where changes in ecological character have occurred, right, and they are still occurring and they are also likely to occur, so option 3 is also correct. So the correct answer option that we have is C. Okay, now let's move to another. Which of the following are ecosystem services provided by wetlands? Flood regulation, water purification, carbon sequestration, soil erosion control. Which answer is correct? I hope it is visible now. Why give them D? मैम क्योंकि जो वेटलैंड्स हैं वो क्लासिकल एग्जांपल है मल्टीपल इकोसिस्टम की। ओके गुड। तो फ्लड रेगुलेशन भी करता है, ये बिल्कुल करता है, राइट, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है जितना भी एक्सेसिव रेन वाटर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फ्लड होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव 1। नेक्स्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन भी करता है, क्यों, बिकॉज फिल्टर करता है पॉल्यूटेंट्स को, हमारे जितना भी सेडिमेंट्स होगा, वेस्ट होगा वाटर से, राइट, सो इट आल्सो डू वाटर प्यूरिफिकेशन। देन 3, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, दिस आल्सो इट इज डन बाय वेटलैंड्स, राइट, क्योंकि ये स्टोर करता है बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के कार्बन प्लांट्स को, राइट, और यू नो हेल्प करता है जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उनसे फाइट करने में। सो थर्ड इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ, सोइल इरोजन कंट्रोल, वो भी करता है।
as wetland vegetations like holds soil together और वो prevent करते हैं हमारा erosion को. So this is also correct. So correct answer that we have is D. Very good बच्चे. Yes Rohit, what about you? Because wetland is ecotone which holds the soil and didn't allow to erode it. Okay, very good. I hope it is clear. The news is clear to you. अगली न्यूज पर चले. A full stop on the top quote, the right to menstrual health and hygiene. Prelims के लिए it is very important. क्या क्या changes आए हैं? What Supreme Court said. This is why we are covering this news. ठीक है. अच्छा. जब हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, व्हाट इफ इट बिकम्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, सिर्फ हेल्थ इश्यू जब ये नहीं रह जाता है, इसीलिए हम लोग इस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, इमेजिन करो एक स्कूल जहाँ पे बेसिकली गर्ल्स आर मिसिंग स्कूल, राइट. दे आर मिसिंग क्लासेस लाइक स्ट्रेट फॉर लाइक एवरी सिंगल मंथ दे आर मिसिंग इट, राइट. अभी कुछ टाइम से स्कूल में, राइट, अक्रॉस इंडिया टीनेज गर्ल्स द वन स्टडीइंग इन क्लासेस लाइक फ्रॉम 6 to 12 they are facing big problem. हर महीने they are facing this big problem. Now when they have their period, they often don't have clean toilets, या फिर उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती है, या फिर सेफ्टी सैनिटरी पैड्स की प्रॉब्लम होती है, एंड दे डोंट हैव वे टू डिस्पोज, एंड दे हैव टू लाइक यूज दे डोंट हैव प्रॉपर प्रोडक्ट्स टू यूज प्रॉपर्ली. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था दैट मेनी गर्ल्स मिस स्कूल डेज एंड दे फॉल बिहाइंड इन स्टडीज एंड इन सम केसेस दे इवन ड्रॉप आउट. तो हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कमिंग बिकॉज Supreme Court mentioned it. This is the reality, right? And this has been like seen by like many schools and by many people also. इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट विद डिफरेंट आर्टिकल्स, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल्स मेंशन किया है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. प्रीलिम्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका रेलेवेंट है प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता चलेगा, जेंडर जस्टिस के बारे में पता चलेगा, पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में पता चलेगा, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू टेल अस अबाउट द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट व्हाट वाज द थिंकिंग बिफोर और अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसए पर्सपेक्टिव आल्सो. ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट को कवर करती है ये न्यूज, फिर उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे with the news. So this is covering GS paper 2, governance और social justice के बारे में बात कर रहे हैं, health access के बारे में, welfare of elderly and vulnerable, state responsibility और public health के बारे में. GS paper 3, economy and human capital, health as investment in productivity, skilled healthcare workforces, research and innovation ecosystem, that we are going to understand. ठीक है, कि जब हमारे rights, right, those are considered as entitlement, सिर्फ principles बनकर नहीं रह जाते हैं, तब बेसिकली हम उनको कैसे कंसीडर करते हैं, राइट. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली लिटिगेशन में, जब उनके पास कोई ऐसा केस आता है तो व्हाट रोल सुप्रीम कोर्ट प्लेज, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमें चीज बोली है. उन्होंने एकदम साफ साफ बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन आर नॉट ओनली चैरिटी, या फिर वो कोई वेलफेयर नहीं है, राइट. वो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्या बोला उनको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में. ठीक है, अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और यहाँ पे उनको इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 3 आर्टिकल्स का मेंशन उन्होंने किया था, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21A. ठीक है, एंड हाउ दे रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन विद दीस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इंश्योर करा है कि जो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल फैसिलिटीज है, राइट, वो बेसिकली स्कूल को देनी होगी, राइट. स्कूल कैन नॉट इग्नोर दिस एनीमोर. सो गर्ल्स डिग्निटी, इक्वालिटी, उनकी एजुकेशन, वो बेसिकली यहाँ पे बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए. सो दिस जजमेंट ऑफ चेंजेस हाउ इंडिया लुक्स एट मेंस्ट्रुअल is like from shame and to rights it's diverting, and this is the change that we are seeing in the society. ठीक है, अब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज समझ लेते हैं, थोड़ा सा नंबर समझ लेते हैं कि पहले क्या क्या चीजें हो रही थी एंड हाउ इट इज चेंजिंग नाउ. तो देखो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि like girls, right, they cannot afford sanitary products, and we can say they do not have access to toilets also. ना उनके पास पानी का एक्सेस है, ना डिस्पोजेबल फैसिलिटीज का एक्सेस होता है स्कूल में, एंड नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी आल्सो, बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट आल्सो, बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग आल्सो, दे वर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So for a long time in like India, menstrual was like treated as something very private, या फिर उसको something act of shameful बनाया जाता था, right. This was the topic that was not openly talked about, है ना. So society expected girls and women to adjust quietly, right. Even families often basically they discourage these kinds of conversation about periods, right. तो ये जो cultural silence था, ये basically बहुत ज्यादा gap create कर रहा था
between development and between health issues, right? और ये और ज्यादा डीप प्रॉब्लम्स लेकर आने लगा. नाउ व्हेन दिस मैटर रीच्ड टू सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने यहाँ पे इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मेंशन करा और उन्होंने किस तरीके से इस चीज को बोला है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. जब हम साइलेंस और शेम की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिकली इतने टाइम से फॉर लाइक जनरेशंस टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन वाज कंसीडर्ड एज एम्बैरेसिंग, है ना. बहुत लोगों का आई कैन से दिस इज लाइक मिथ, है ना. They like considered it as a taboo. Even months after like avoiding teaching girls, right, they properly didn't understand, right, that how they are going to get their first period. Even when they got their first period, they were not aware of it, right. So about 71% of adults and girls reportedly did not know about menstruation jab tak unhe their first period did not happen, right. So at that moment many girls were like confused, many girls were like scared, right, that they didn't know that what happened to them. So one news also reported कि around like 255 million girls struggle every month to manage their periods, ठीक है. और इसकी वजह से क्या होता था, एजुकेशन पर बात आती थी, and not only education, on their mental health also, right. So all these things are basically considered by Supreme Court, और ये वहां पर मेंशन की गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही है, राइट. तो जब ये जो हमारा जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा, तो हुआ ये, अ सोशल एक्टिविस्ट, राइट, ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने बोला कि बहुत सारे स्कूल में, इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज जो है गर्ल्स को प्रोवाइड नहीं की जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, राइट. तो इससे क्या हो रहा था, दिस फोर्सेस गर्ल्स टू मिस स्कूल्स या फिर उन्हें ड्रॉप आउट करना पड़ रहा था. तो कोर्ट ने इस चीज को एग्जामिन करा और उन्होंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करी, उन्होंने हेल्थ के एक्सेस पर बात करी, एजुकेशन के इम्पैक्ट पर उन्होंने बात करी, जेंडर इक्वालिटी वाज आल्सो मेंशन्ड देयर, एंड टू दिस फाइनली कोर्ट अग्रीड कि हाँ, ये सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं है, अब ये हमारा बन चुका है राइट इश्यू, ठीक है. सो दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू कवर दीज आर्टिकल्स आल्सो, ठीक है. अब यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कोर्ट ने डिसाइड करा है कि एंड समथिंग हिस्टोरिक इट विल बी कंसीडर्ड, राइट, समथिंग व्हिच वाज कंसीडर्ड मिथ, समथिंग व्हिच वाज कंसीडर्ड टैबू, finally we are talking about it in the court as well, ठीक है. So this is a big change in the society that has been seen. आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 क्या बताता है, राइट टू लाइफ और हमारा पर्सनल लिबर्टी, राइट, हर किसी का हक है ये, राइट. उसके बाद में हमारे पास आर्टिकल 21 आल्सो टेल्स अबाउट द, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आर्टिकल 21, तो ये कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल राइट भी उसके अंदर आता है. इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 नाउ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करें तो, राइट. सो उसके साथ में ये है कि लाइफ हियर डज नॉट मीन दैट ब्रीथिंग, इट मीन्स दैट यू हैव टू लिव विद डिग्निटी, राइट, बिना किसी ह्यूमिलेशन के, एज गर्ल्स ऑफन फेस दिस, राइट. दिस इज व्हाई वी आर कवरिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है. एक बेसिक ह्यूमन नीड है, ये रिक्वायरमेंट है. गर्ल्स आर बेसिकली फेसिंग दिस एवरी सिंगल मंथ, है ना. ऐसा नहीं है कोई साल भर में एक चीज आ रही है. So because they are facing this often, so this is somewhere telling us about the dignity also. Human basic requirement hai, right? So a girl is basically managing her period without water, without toilets, without privacy, right? This is not living with dignity, it is, right? So this is why the court said that this is more than health now. Right? पहले क्या होता था, periods वाले considered as sanitation issues, health issues मानते थे, right? But now court said कि नहीं. अब अगर पीरियड्स अगर अफेक्ट कर रहे हैं डिग्निटी को, राइट, अगर पीरियड्स बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, और अगर ये इशू एजुकेशन पर आ चुका है, तो और गर्ल्स के पास फैसिलिटीज नहीं है, इसको उन्हें एम्बेरसमेंट देखना पड़ रहा है, एंड दे हैव टू लाइक स्किप स्कूल्स आल्सो. उन्हें बेसिकली इक्वालिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो गर्ल्स आर कंसीडर्ड इक्वल्स एज टू द बॉयज आल्सो, राइट. तो इक्वालिटी वहां पर क्यों नहीं है, उन्हें बेसिकली ड्रॉप आउट करना पड़ता है. मेंस्ट्रुएशन जो हमारी जो डेली लाइफ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है हमारी किस चीज को, एजुकेशन को अफेक्ट कर रही है, राइट. वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ सिचुएशंस. इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 21 का मेंशन किया गया है दैट राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है. मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज एसेंशियल फॉर डिग्निफाइड लाइफ. आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, बेसिकली राइट टू इक्वालिटी के बारे में, राइट. अगर बॉयज भी वहां पर स्कूल अटेंड कर रहे हैं और वो फ्रीली अटेंड कर रहे हैं, बट गर्ल्स हैव टू लाइक फेस ऑल ऑफ दीस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंस टू देम एवरी मंथ. So this is creating what? This is creating the gap. This is creating the inequality, right? So this is why Article 14 is mentioned over here, right? उसके बाद में Article 21A भी mention किया गया है, which talks about right to education. As it is talked कि कैसे उन्हें basically drop out करना पड़ता था कितनी सारी लड़कियों को, and they have to like miss schools also. तो इसकी वजह से this is also coming under Article 21, जो कि उनका हक है, but they are not getting it because of the less resources and not giving the facilities by the government, ठीक है. अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना ये सारी चीजें, तो राइट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी सिटीजंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट. अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है स्कूल को, उन्होंने बोला है कि आपको मैंडेटरी करना होगा, कोई ऑप्शनल की बात नहीं हो रही, मैंडेटरी. ये हर स्कूल में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट को, उन्हें प्रोवाइड करनी होगी हमारे पास फंक्शनल टॉयलेट्स, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स ऑल्सो, रनिंग वाटर शुड बी देयर, राइट.
एंड privacy also should be there. फ्री सैनिटरी नैपकिन भी देने होंगे, एक डिस्पोजेबल सिस्टम भी देना होगा, इमरजेंसी सप्लाई कॉर्नर्स भी होने चाहिए, अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, और एक्सेसिबिलिटीज भी होनी चाहिए फॉर गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। और एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी है कोर्ट ने कि इफ गवर्नमेंट स्कूल्स और इफ एनी प्राइवेट स्कूल इज फेसिंग टू डू सो, तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अगर प्राइवेट स्कूल बेसिकली फेल होते हैं तो दे विल बी लाइक कॉल्ड एज और दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डी-रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सीरियस है चीजें, ठीक है। जो भी जजमेंट हमारे पास हुई है बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज समथिंग टू बी टेकन एज सीरियस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, the data context we are going to understand. तो according to this report, what we are going to understand, according to NFHS, तो हमें ये पता चला है कि 77.3% of women, right, between age 15 to 24, they use hygienic method, ठीक है। But nearly 1 out of 4 women they still lack proper access. तो प्रोग्रेस हुई तो है, बट अभी भी हमारे पास में गैप है, अभी भी हमारे पास में इनइक्वालिटी है, जो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, राइट। अब अगर हमारे पास में प्रोग्रेस है और वो बहुत स्लोली चल रही है, इज इट गोइंग टू क्रिएट मच ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। अगर वो प्रोग्रेस हमारे पास बहुत स्लोली चल रही है और वो डैमेज ज्यादा कर रही है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रोग्रेस इतनी ज्यादा स्लो है, तो दैट प्रोग्रेस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव, राइट। कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है, दैट हैज बीन सीन आल्सो, राइट। So progress is also there, but it is not that much. Inequality is still in the schools, inequality is still in the system, inequality is still in the society, ठीक है। अब अगर हम जजमेंट की बात करें तो दिस इज लाइक द लैंडमार्क ऑल्सो। क्यों है लैंडमार्क? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हियर, राइट। हमारा जो मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा है वो लीगली ब्रेक हो चुका है, राइट। दिस मेंस्ट्रुअल डिग्निटी इज राइट नाउ, ठीक है। कोई फेवर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये हमारा हेल्थ को इक्वालिटी से कंबाइन कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को फोर्स कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है गर्ल्स के बायोलॉजिकल रियलिटीज इन लॉज आल्सो। इसका सोशल इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा, राइट। तो दिस जजमेंट विल फाइनली विल नॉर्मलाइज कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल, राइट। जैसे हम लोग इसको मिथ मानते थे एंड ये सोसाइटी एंड पीपल यूज्ड टू लाइक अवॉइड दिस काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन, फाइनली इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन, ठीक है। अगर अगर ये चीज हो रही है तो इनकरेज करेगा ये लड़कियों को टू स्टे इन मोर स्कूल, ठीक है। और कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू चेंज देयर मेंटल स्टेट आल्सो, राइट। हमारा जो जेंडर जस्टिस है दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व, ठीक है। कहीं ना कहीं पर वो चीज हमें देखने को मिलेगी, राइट। आई होप इट इज अंडरस्टूड यू। One question, then we'll move to the next news. Which of the following rights have been included under Article 21 of the following of the Constitution by judicial interpretation? Right to clean environment, right to privacy, right to livelihood, right to health. Which one is it?
I'm sorry for the glitch. I hope you can see the question now. Okay, so as we were discussing, in Article 21, I have mentioned you that right to clean environment is there. It is talked under this. ठीक है? ये जैसे कि different cases about screen share नहीं हो रही. So basically, it talks about right to clean environment also, right? Right to privacy की भी बात करते हैं यहाँ पे, right? Fundamental right justice है ये. Then right to livelihood की भी बात होती है, right? Right to health की भी बात होती है. So all the four are correct in here. So the correct option that we have is C, 1, 3, and 4. Now moving to the next news. Let's understand what our next news is talking about. So let's understand the third news. Rise in southern states share in devolution of funds provides no relief to Tamil Nadu. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर प्रीलिम्स आल्सो एंड फॉर द मेंस आल्सो आल्सो. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो क्या होता है कि हर साल में इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, मनी कलेक्ट करती है, टैक्सेस लेती है. ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया. अब ये कुछ कुछ जो पैसा होता है या तो वो शेयर होता है ना. तो ये बेसिकली स्टेट को दिया जाता है सो दे कैन लाइक स्पेंड ऑन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में स्पेंड करें, रोड्स पे, बेसिकली डेवलपमेंट में फोकस करें, राइट. सो दिस शेयरिंग ऑफ टैक्स इज बेसिकली नोन एज टैक्स डेवल्यूशन, राइट. और बेसिकली यहाँ पर जब हम शेयरिंग की बात करते हैं तो कितना स्टेट को दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है हमारा फाइनेंस कमीशन के थ्रू, है ना. किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. अब ऐसे मानो इस चीज को कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर वो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, पहले एक बार कनेक्ट कर लेते हैं पेपर से. लेट्स कनेक्ट इट विद द सब्जेक्ट्स. फिर उसके बाद में स्टोरी समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और बेसिकली तमिलनाडु नाराज क्यों है यहाँ पर, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, so this news is connecting to us with GS paper 2 as this is going to tell us about the polity and governance. फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसे होता है, राइट. एंड इफ तमिलनाडु इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो इफ लाइक व्हाट तमिलनाडु कैन डू इन दैट केस, और किस बेसिस पर दैट बेसिकली डिवीजन इज डन, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. उसके बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, रोल ऑफ बजट क्या होता है गवर्नेंस में, क्यों इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और सोशल सेक्टर के बारे में, फिस्कल फेडरलिज्म, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, किस किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना किस स्टेट को मिलता है, किस बेसिस पर मिलता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब ये 16 फाइनेंस कमीशन जो है, इसकी पहले कहानी समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या. फाइनेंस कमीशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं. देखो, इंडिया एक फेडरल कंट्री है. इसका मतलब क्या है कि सेंटर कलेक्ट करेगा जितना भी टैक्सेस होगा. ठीक है, बड़े बड़े टैक्सेस कलेक्ट करेगा, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, ये सारे टैक्सेस. ठीक है, अब स्टेट क्या करेगी, स्पेंड करेगी मोस्ट ऑफ द मनी ऑन पीपल्स डेवलपमेंट. स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गई, वेलफेयर हो गई. तो सबसे बड़ा सवाल हमारे पास में ये आता है कि हाउ शुड द सेंटर शेयर टैक्स मनी विद द स्टेट्स फेयरली. ठीक है, कि हम लोग प्रॉपर, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट, ऐसा तो नहीं है ना कि लोग सेंटर पार्शियलिटी करना शुरू कर देगी कि तमिलनाडु को इतना ही मिलना चाहिए क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, नहीं ना.
व्हेन वी टॉक अबाउट शेयरिंग ऑफ दीज थिंग्स, पैसे की जब लोग बात करते हैं शेयरिंग की, तो वो किस बेसिस पर शेयर होता है? एज वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग वन नेशन, एक नेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो फेयर अकाउंट्स में होना चाहिए, है ना? ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ हमारा जो है पूरा डेवलप हो चुका है, साउथ हमारा हो नहीं रहा है, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट। हम लोग फोकस करेंगे कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, नीड्स के बेसिस पे हम लोग डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करें, राइट? तो इस चीज को आंसर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, विच इज कमिंग अंडर आर्टिकल 280, ठीक है? तो हर साल पे क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो है हमारी फॉर्म होती है, वो रिकमेंड करती है कि कितना मनी शेयर होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 16th फाइनेंस कमीशन की, दैट इज गोइंग टू कवर 2026 टू 2031, ठीक है? अब यहाँ पर हम इससे पहले समझेंगे कि दो टाइप की डिवोल्यूशन होती है, दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देख, तो पहला है हमारे पास में वर्टिकल डिवोल्यूशन। सो दिस टेल्स अस हाउ मच ऑफ टोटल टैक्स मनी शुड गो टू द स्टेट। जब हम इसके बारे में बात करते हैं, दिस टॉक्स अबाउट कि स्टेट कितनी बड़ी है, हाउ बिग इज द स्टेट शेयर, मतलब वर्टिकल डिवोल्यूशन डिसाइड करता है कि बेसिकली कितना पैसा जो है सेंटर डिसाइड करेगी ताकि एक साथ सारी स्टेट को मिल सके। सो राइट नाउ दिस इज लाइक 41%। कितना है? 41%। तो इसका मतलब यह है, दिस मींस आउट ऑफ ऑल टैक्स मनी दिस कलेक्टेड बाय सेंटर, 41% गोज टू हुम? टू स्टेट एज अ ग्रुप, ठीक है? ऐसे समझो कि एक पेरेंट है, उनके पास में 100 रुपए है, उन्होंने क्या डिसाइड करा, दैट आई विल गिव 41 टू माय चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है? एक साथ में कितना पोर्शन दूंगा अपने 100 में से? 41 दूंगा, और एक साथ टुगेदर की यहाँ पर बात होती है, दिस इज नोन एज वर्टिकल डेवोल्यूशन, ठीक है? तो मतलब ये होगा कि जो डिसीजन होगा हमारे यहाँ पे, कोई वर्टिकल डेवोल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इस बार के बजट में, ठीक है? स्टेट विल गेट द सेम ओवरऑल शेयर। जो हमारी प्रॉब्लम आई है, जहां पर तमिलनाडु को प्रॉब्लम है, दैट इज इन दिस हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, दैट हाउ शुड दिस 41% विल बी डिवाइडेड अमंग स्टेट्स। अब ये जो 41% है इस वर्टिकल में, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है? अब आगे चल के डिवाइड किस किस बेसिस पर होगा, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है कि बेसिकली किस किस को कितना कितना शेयर मिलेगा इसमें से। मतलब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन डिसाइड कि 41% में से कैसे डिवाइड होगा, इंडिविजुअल स्टेट को कितना कितना मिलेगा, किस किस बेसिस पर मिलेगा, किस स्टेट को कम मिल रहा है, किस स्टेट को कैसे ज्यादा मिल रहा है, और किस बेसिस पर मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइड। मतलब ऐसे सोचो कि नाउ द पेरेंट हैव टू लाइक डिसाइड कि वो जो 41 रुपए है, किसको 10 रुपए दिए जाएंगे, किसको 2 रुपए दिए जाएंगे, किसको 3 रुपए दिए जाएंगे, मतलब किसको ज्यादा जरूरत है, किसकी अर्निंग ज्यादा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, किसने पहले अच्छा काम किया है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अमंग द चिल्ड्रन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, राइट? सो दिस इज वेयर द डिसएग्रीमेंट हैपेंड, ठीक है? कुछ स्टेट को ऐसा लगता था कि दे डिजर्व मोर बिकॉज, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ में दे वर लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर मोर, ठीक है? इसी